کیا جین زی یعنی نوجوان نسل بومرز یعنی بوڑھے اور بزرگ لوگوں سے اکتا چکی ہے؟ کیا بوڑھے اور بزرگ لوگوں کی جین زی کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ جین زی کی تعریف کیا ہے؟ زرین نظامانی صاحب کے اپنے ہی سابق آرٹیکل کی روشنی میں جین زی کیا ہے؟ اور جین زی جو سمجھی جا رہی ہے اور جو خوبیاں جو آزادیاں ان کو اچیومنٹ کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، کیا واقعی وہ آزادیاں ہیں؟ اور کیا واقعی جو خامیاں صبح دوپہر شام سوشل میڈیا پر پاکستان کی بیان کی جا رہی ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہیں؟ آج اس کے اوپر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عبدالباسط ہوں۔ اگر یہ موضوع سیاسی ہوتا تو میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ سیاسی سے زیادہ میرے اور آپ کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شاید ہمارے حال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک آرٹیکل بہت مشہور ہوا ہے، زرین نظامانی صاحب جو پاکستانی شہری ہیں اور امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کرمنالوجی میں۔ وہ پاکستان کے ایک فیمس اداکار جوڑے کیسر فاروق صاحب اور فضیلہ قاضی کے بیٹے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ بڑے اچھے پڑھ رہے ہیں اور آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں۔ اچھا، ان کے آرٹیکل پہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا۔ کیونکہ اس کے بعد یہ ایک اہم ڈیبیٹ شروع ہوئی جس پہ میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور خدا کا واسطہ ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سیاسی مت لیں، بلکہ اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں اور پھر اپنے ویوز سے مجھے آگاہ کریں۔ نمبر 1، جین زی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ جین زی اور نوجوان نسل اپنے بزرگوں سے بومر سے اکتا چکی ہے۔ انہوں نے جین زی سے مراد نوجوان نسل لیا ہے اور بزرگ اور بوڑھے لوگوں کو بومرز کہا ہے، جو تعریف کے مطابق کہا جاتا ہے۔ اب میں ان کی وہ تعریفیں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں جو لکھی ہوئی ہیں گوگل کے اوپر۔ جو ڈیفرنٹ جنریشنز ہیں ان میں سب سے پہلے سائلنٹ جنریشنز ہیں، جن کا جو ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے وہ ہے 1946 سے پہلے والے لوگ، پھر 1946 سے 1964 تک بومرز ہیں، پھر جین ایکس ہیں، جین ایکس 1965 سے 1978 تک ہیں، پھر جین وائی ہیں، ان کو میلینیلز بھی کہا جاتا ہے، جس میں سے ہم میں سے اکثریت لوگ ہیں جو 79 سے 95 تک پیدا ہوئے۔ جو جین زی ہیں ان کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 97 سے 95 سے 2010 تک کی پیدائش کے لوگ ہیں۔ پھر 2010 کے بعد والے لوگوں کو جین الفا کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے لوگوں کو 2024 کے بعد والے لوگوں کو جین بیٹا کہا جائے گا۔ یہ تو وہ تعریف ہے جو گوگل کے اوپر موجود ہے، لیکن ایک تعریف اور بھی ہے جو ان کے آرٹیکل کے بعد مشہور ہو چکی ہے، اور وہ یہ تعریف ہے کہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، وہ جین زی ہیں۔ اب جین زی کی جن چیزوں کی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جین زی پہ پاکستان میں پابندیاں ہیں، اگر ہم اس کا ایک جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں جو پاکستان میں ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں خامیاں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں برائیاں نہیں ہیں، کمزوریاں نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اتنے ہی برے اور اتنے ہی اچھے ہیں جتنے باقی سب ممالک ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنے آرٹیکل میں 2 آرٹیکل ہیں ان کے، ایک تو وہ ہے جو اے آئی جنریٹڈ ہے اور دوسرا وہ ہے جو اصل میں آرٹیکل تھا جو ایکسپریس ٹریبیون سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جو اصل آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بومرز جو ہیں وہ فائر وال چاہتے ہیں، یعنی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، اور جین زی جو ہے وہ فری انٹرنیٹ چاہتی ہے۔ بومرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکسز لگائے جائیں، جبکہ جین زی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ موبائل فونز سستے ملیں۔ اب ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ پابندیاں کہاں کہاں لگ رہی ہیں۔ چائنا میں دا گریٹ فائر وال کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کو جائیں اور پڑھیں۔ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب وہاں پہ بین ہے۔ پاکستان میں نیشنل فائر وال کے نام سے ہے، رشیا میں ساورن انٹرنیٹ کے نام سے ہے، ایران میں نیشنل انفارمیشن نیٹ ورک کے نام سے ہے، اور پھر اگلی بات، یورپ میں اس وقت یورپ کے بے شمار اسکولوں میں موبائل فون پہ پابندی ہے۔ فرانس میں 2018 سے، جی زرین صاحب آپ اس کو پڑھیں پلیز، 2018 سے فرانس کے پرائمری اور مڈل اسکول کے بچوں میں موبائل فون کے استعمال پہ پابندی ہے۔ اب
सितंबर 2026 से वो इसको हाई स्कूल से भी लागू करने का सोच रहे हैं। नीदरलैंड में जनवरी 2024 से सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी है। बरतानिया में, फ्रांस में सितंबर 2026 से एक नया बिल आ रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं उनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही ना करने दिया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। बरतानिया में, स्विट्ज़रलैंड में ये कहा जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र वालों पे पाबंदी लगाई जाए। यूरोपीय यूनियन ये कह रहा है कि नवंबर 2025 से जो 16 साल से कम उम्र के नौजवान हैं उन पे सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए। इस वक्त यूरोप में एक टर्म यूज़ हो रही है, उस टर्म को कहा जा रहा है डिजिटल कर्फ्यू। आप इसको गूगल के ऊपर जाके पढ़ें। उससे मुराद ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया ऐप्स और सोशल मीडिया पे बेलगाम और अनलिमिटेड आज़ादी की वजह से ना सिर्फ ख़ुद तबाह हो रही है बल्कि उससे बहुत से ममालिक और माशरा तबाह हो रहा है, और उससे बचाने के लिए यूरोप ये पाबंदियाँ लगा रहा है। हमारे यहाँ तो अभी ये पाबंदियाँ शायद उस तरह से लगी नहीं। हमारे यहाँ तो आज भी जो बच्चा चाहता है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे जो अपना चाहे अकाउंट बना लेता है। यूरोप में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं और दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिनमें जब आप अपना फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड उसमें देते हैं, आप अपना पासपोर्ट नंबर उसमें देते हैं। ज़ुरैन साहब, माज़रत के साथ मैं चाहूँगा आप ठंडे दिल से इस जुमले को सुनें। जब आप जिस मुल्क में बैठ के ये आर्टिकल लिख रहे थे उस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब हमारे नौजवान जाते हैं तो वहाँ उनको ये कहा जाता है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलें, लॉगिन करें और हमारे हवाले करें ताकि हम आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखें। क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? क्या ये आज़ादी को नहीं रोकता? रोकता है ना, लेकिन आप इस पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके सारे आर्टिकल्स जो मैंने 2021-22 तक तकरीबन 20-25 आर्टिकल्स पढ़े हैं उन सब में आपको अगर मसला है तो पाकिस्तान के मसाइल का है। मुझे तब भी कोई मसला नहीं है, आप ज़रूर लिखें, लेकिन खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान को बुरा पोर्ट्रे करने में, पाकिस्तानी मुआशरे को बुरा पोर्ट्रे करने में इतनी एक्सट्रीम पर मत जाएँ कि जो चीज़ें दुनिया में भी हो रही हैं उनको सिर्फ पाकिस्तान का बना के आप पेश कर रहे हैं। इनका एक आर्टिकल है ज़ुरैन साहब का जो 23 दिसंबर का है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसमें भी इन्होंने बूमर्स का जिक्र किया है। ज़ुरैन साहब, आपने उसमें लिखा है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो दौलत है उसका 1% लोग जो हैं उनके पास 24% दौलत चली गई है, और टॉप 10% जो लोग हैं उनके पास पाकिस्तान की 60% के करीब दौलत जमा हो चुकी है। और उसके बाद आपने ये सेंटेंस लिखा है, नाउ इट इज़ टाइम टू लीव पाकिस्तान, नो फ्यूचर हेयर। यानी दौलत के एक जगह इकट्ठे होने को आपने ये पोर्ट्रे किया है, नो फ्यूचर हेयर। जबकि अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, मैंने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, आपने भी यकीनन पढ़ी होगी, उसमें इंडिया के स्टैट्स देखें तो इंडिया के जो 1% लोग हैं अमीर तरीन, उनके पास मुल्क में मौजूद पूरी दौलत का 40% है, हमारे पास 24% है। और उनके जो टॉप 10 हैं उनमें के पास पूरे मुल्क की दौलत का 65% है, हमारे पास तो फिर 58% है। फ्रांस में देखें 27% दौलत सिर्फ 1% के पास है, 58% दौलत सिर्फ 10% के पास है। चाइना में देखें 30% दौलत 1% के पास है, 67% दौलत जो है वो टॉप 10% के पास है। तो उससे क्या ये नतीजा निकलता है कि नो टाइम टू लीव चाइना, टाइम टू लीव फ्रांस? नहीं, ज़ाहिर है वहाँ भी मैनेजमेंट हो रही है, मसाइल हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे यहाँ भी कोशिश की जा रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे और वो तमाम लोग जो इस चीज़ को लेके, रेटरिक को लेके, आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जेन ज़ी की जो तारीफ़ मैंने बताई है वो है जो गूगल पे लिखी है, किताबों में मौजूद है। एक तारीफ़ ज़ुनैन साहब आपने भी की है, आपका एक आर्टिकल है जो अप्रैल 2022 को छपा है, 12 अप्रैल 2022 को। मेरे सुनने वालों को मैं गुजारिश करूंगा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे जाके वो आर्टिकल पढ़ें। वो आर्टिकल उस वक्त पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सियासी बात ना करूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यानी इमरान खान साहब जिनको निकाला गया, उन्होंने लिखा है कि ये रेटरिक बेच रहे हैं, और जो इनके मानने वाले हैं यानी जेन ज़ी वो रिच हैं, एलीट हैं, और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और फेसबुक पोस्ट हैं। ये आपके लाइन है, मैं कोशिश करूंगा साथ आपका आर्टिकल चला दूं। फिर उसमें आपने ये भी लिखा है एंड में कि जो ग्रुप ऑफ अनएजुकेटेड मैसेज है, पीपल है, अनएजुकेटेड पीपल, रेटरिक इज़ व्हाट सेल्स इन अनएजुकेटेड पीपल। उसमें इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अनएजुकेटेड से मेरी मुराद लिटरली अनएजुकेटेड नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखे हैं जिनको हम पढ़ा लिखा कहते हैं लेकिन हकीकत में वो पढ़े लिखे नहीं। तो मेरे भाई, यही तो वो बात है जो की जा रही है कि इस वक्त जेन ज़ी को बुनियादी तौर पे एल्गोरिदम्स के साथ कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। मेरे, आपके, हम सब के बच्चे
इस वक्त जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्या माँ बाप उसके ऊपर चेक ना रखें? क्या ये मुआशरा उसके ऊपर चेक ना रखे? क्या हमारे इदारे उसके ऊपर चेक ना रखे? मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि जो फेसबुक पेज बनता है, हो सकता है कल को मैं इसकी जद में आ जाऊँ, लेकिन जो पेज बनता है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ये कहाँ से इजाज़त मिल जाती है किसी शख्स को कि किसी की माँ बहन बेटी को? आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ ज़ुरैन साहब, आप अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो 2022 का आर्टिकल लगाएं जो आपने उस वक्त अदम एतमाद तहरीक के बाद लिखा था। तो 4 दिन के अंदर अंदर इस वक्त पाकिस्तान में जेन जी, जो कि शायद आप जेन जी भी नहीं रही, बूमर्स हो चुके हैं, वो आपका वो हशर करेंगे कि आपको लग पता जाएगा कि ये पाबंदियाँ, ये रेगुलेशंस कितनी ज़रूरी हैं। किसी औरत के, किसी पार्लियामेंटेरियन के, किसी की AI जनरेटेड वीडियोस बना के उसको डाल देना और MBBS FCPS लोग उस एल्गोरिदम के चक्कर में बह जाएं और ये भी ना देख सकें कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये वीडियो जाली बनी है, ये ऑडियो जाली बनी है। इसका शिकार सारी सियासी पार्टियां हैं। माज़रत के साथ, जो बीज बो रहे हैं आज काट रहे हैं, जो आज बो रहे हैं वो कल काटेंगे, सब इसका शिकार हो जाएंगे। लेकिन समझदारी, रेगुलेशंस और जेन जी को ये बताना कि बूमर्स जो हैं वो जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जेन एक्स जो हैं, जो मिलेनियल्स जो हैं, जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए है मेरे भाई। इसी तरह जिस तरह मैं अपने बच्चे को, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो जब गेम खेल रहा होता है और वो गेम्स में से उसके अंदर इश्तिहार आते हैं, उन इश्तिहारों को रोकने के लिए डिफरेंट पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप्स बनी हुई हैं, यूट्यूब के पेरेंटिंग वेरिएंट बने हुए हैं। अगर बूमर्स बिल्कुल फजूल हैं तो फिर ये ऐप्स क्यों बनी हुई हैं? फिर ये चेक एंड बैलेंस क्यों बने हुए हैं? यूरोप आज ये क्यों सोच रहा है कि हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, उसके ऊपर माँ बाप कंट्रोल रखें? यूरोप ये सोचने पे क्यों मजबूर हो गया है कि रात 10 बजे के बाद, डिजिटल कर्फ्यू जिसका मैंने जिक्र किया वो ये है कि रात 10 बजे के बाद 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल ना कर सकें। वो इसलिए है क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ये इजाद जो आई है, जिसको बहुत पसंद किया गया, उसकी ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज एक बच्चा एक ऐप खेल रहा है, आप उसे गाड़ियों की गेम डाउनलोड करके देते हैं, वहाँ से वो दुनिया जहान की सारी गेम खुद ब खुद उसके मोबाइल में आ जाती हैं। तो क्या वहाँ पे लॉक ना लगाया जाए? क्या उसके मोबाइल को कंट्रोल ना किया जाए? तो वो काम जो आप अपने घर में समझते हैं कि मुनासिब है, क्या वो माशरे में ना होना चाहिए? और आखिरी बात, जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहाँ भी मसाइल है। आज पाकिस्तान के मसाइल की बात कर लें, पाकिस्तान में मैंने देखा, यहाँ पे स्टैट्स निकालने की कोशिश की कि सुइसाइड का रेट क्या है और जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहाँ पे सुइसाइड का रेट क्या है। तो आप वहाँ देख लें, पाकिस्तान में जो सुइसाइड का रेट है इस वक्त, वो तकरीबन फ़ी लाख अफराद में से 5.6 से 8 तक के लोग जो हैं वो सुइसाइड करते हैं सालाना। और अमेरिका में 13 से लेके 14 तक लोग, यानी पाकिस्तान में 15,000 से 20,000 लोग जो हैं वो सुइसाइड करते हैं, और अमेरिका में 48,000 से 49,000। तो इसका क्या मतलब है? वो मुल्क छोड़ दें। ये बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं जिसके ज़रिए से आप लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। आप लोगों को वो चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है जो डेविड रॉबर्टसन ने 2010 में ये टर्म कॉइन की थी, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स। वो क्या है? वो ये है कि जहाँ हक़ाइक़ के ऊपर इमोशंस जो हैं वो हावी हो जाते हैं। और दुनिया में 2010 के बाद ये डिबेट चल रही है। और अगर आप जेन जी हैं, और जेन जी से मुराद उम्रों का फ़र्क नहीं बल्कि जेन जी से मुराद शऊर है, तो क्या आपके अंदर इतना ही शऊर था कि आपको आज से 4 साल पहले पता नहीं चला कि कोई आपको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है? आज आपको पता नहीं चला कोई आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है? दुनिया के मुल्क में एक शख्स सदर का इलेक्शन लड़ रहा था, आप सारे उसके हमायती हो गए, आपको पता ही नहीं चला उस शख्स ने बाद में आपको घास भी नहीं डालनी। माज़रत के साथ ये शऊर नहीं है, ये एल्गोरिदम्स हैं जिनके साथ आपके इमोशंस को प्ले किया जाता है। वही चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं जो आपको फैसिनेट करती हैं। यूट्यूब के सारे थंबनेल जिनके ऊपर लिखा होता है आज की रात बड़ी अहम है, हुकूमत गिर जाएगी, जाके थंबनेल देखें सियासी वीडियोस के, वो एल्गोरिदम्स हैं बेसिकली। टिकटॉक के ऊपर चीज़ें देखें, यूट्यूब के, फेसबुक के। मुझे भी पता है अगर ये वीडियो मैं आपके कॉलम की हमायत में बनाता तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते या ज़्यादा शायद पॉपुलैरिटी मिलती। अब शायद लोग क्रिटिसिज्म करें, लेकिन वो बात मैं मुआशरे के बच्चों के लिए नहीं कर सकता जो मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि जनाब लिखें, हमारे मसाइल पे लिखें, लेकिन दुनिया के मसाइल पे भी लिखें। आखिरी मैं एक बात आपसे इस वक्त करूँगा कि बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। भाई दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए हमारे नौजवान जा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें तो इस वक्त 2024 से 25 तक इंडिया टॉप के उन मुल्कों में शामिल है जहां से लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं।
जब आप ये कहते हैं कि गूगल का CEO जो है वो इंडिया का बंदा है, फलां मेटा का CEO, फलां कंपनी का CEO, तो वो जाते हैं तो CEO लगते हैं ना। हमारे लोग जाएंगे तो वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, CEO लगेंगे, और फिर एक इदारे का सरबराह इंडियन लगता है तो पूरा इदारा उनके लोगों से भर जाता है। टॉप 1 पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर शाम है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक तस्वीर लगाते हैं एक सफारत खाने के बाहर खड़े लोगों की और उसके ऊपर लिख देते हैं देखें मुल्क का क्या हाल कर दिया। आपसे गुजारिश है इस तरह ना करें। सियासत ज़रूर करें, एल्गोरिदम्स का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन उस साजिश का शिकार ना हों, उन एल्गोरिदम्स का शिकार ना हों जिन एल्गोरिदम्स के ज़रिए नौजवानों को तबाह किया जा रहा है, जेन ज़ी को तबाह किया जा रहा है, और माशरे के बेसिक फैब्रिक को तबाह किया जा रहा है। और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि बूमर्स जो हैं वो आपके दुश्मन हैं और आप जो हैं वो बहुत अजीम अचीवमेंट्स लेके घूम फिर रहे हैं। जनाब ऐसा नहीं है। और कभी अगर आपको इजाज़त मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया, फुर्सत मिले तो उन पाबंदियों पे भी लिखें जो उस मुल्क पे लगी हुई हैं जिस मुल्क में आप बैठे हैं और आप वहाँ बात नहीं कर सकते। यकीनन आपको ये मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी और आप कभी इसके बारे में आर्टिकल्स लिखेंगे। शुक्रिया।